Some breaking news now coming in. Let's go across straight to the pictures of that black luxury car that was seized earlier by the NIA. It was brought to the NIA office. That's a black luxury car that the NIA said was being used by controversial police officer Sachin Vaze. And the NIA had asked for the car to be brought to the NIA compound. And as we speak now, that car is being searched. Alisha is joining us on the phone line. Alisha, tell us more. We believe the car is being searched. What more do we know about this car or where the car was used? We are given to understand that Sachin Vaze used to use this car. Was it his own car? Was it a rented car? What's the connection? निरंजन इम्पोर्टेंट जहाँ पर एनआई की टीम जो है आज एक सर्चेस पर निकली हुई थी और जहाँ तक उनको ये जानकारी मिली थी और जो कार अब एनआई ऑफिस में है वो कहीं ना कहीं पर बताया जा रहा है कि वजह की खुद की कार थी, सचिन वाजे की खुद की कार थी और इम्पोर्टेंटली देखिए कंफर्मेशन और एक स्टेटमेंट के लिए हम जरूर इंतजार करेंगे पर जो सूत्र Stay with me. I think Shawan is also joining us. Stay with me. Stay with me. Shawan is joining us. Shawan, what's the connection of this black SUV with Sachin Vaze? Well, in fact, Niranjan, what we are picking up from our sources is that this is the same very Mercedes which was actually parked inside the Mumbai police premises, and it was alleged that Sachin Vaze was actually using this very vehicle. In further investigation that was basically carried out by the agency, they found out that this actually belongs to a rental company, an automobile company which has a corporate client. Now, what is not known at this point in time is the relationship between the owner of that particular company and, for that matter, Sachin Vaze, who was actually using that Mercedes car. In fact, Republic TV is also in possession of the same very vehicle which is right now parked inside the premises of the National Investigation Agency, where the searches are basically being carried out. Even as we speak, there are images that are basically coming out for the National Investigation officers getting inside the vehicle and also taking a look at it, because remember, this was the same very vehicle that was actually being used by Sachin Vaze. There are also corporate connections that have essentially emerged in the investigation that is now being carried out by the National Investigation Agency. However, having said that, they are completely tight-lipped about the corporate links that have emerged so far as this very company, this automobile company or car rental company, that has been linked to Sachin Vaze, and also certain other corporate entities or corporate groups that have been basically linked into. But remember, this is the primary role of this company is to provide luxury vehicles to their clients, to their corporate clients. Now, that's the primary role. Having said that, whether at all there have been any business interests that the API actually had is something that the National Investigation Agency is still looking into the matter. Okay, thank you for joining us. Okay, we're staying on the story. We're staying on the story. In fact, we're getting in some more information. Stay with me, Shawan, because the story is getting bigger. Story of 3 cars. 1, the green Scorpio. 2nd, the white Innova. And 3rd, this black SUV, luxury SUV. In fact, we're getting the pictures of the car being searched. Shawan, stay with me because we're just opening up that video and then we'll take the story forward with you as well. This is also debate number 2 tonight with Arnab. Just getting this sequence ready so that we can show it to our viewers. It's breaking into our newsroom. It's just breaking into our newsroom, and we're just going to play that out anytime now. This was the SUV that was brought. Shawan, we're just playing that any second now. Just opening it up. It's on air now. Okay, that's the video. That's the video, first on Republic TV. And it seems like they're sort of checking a lot of items that were at the back of the car. Now, it's getting very, very interesting. Shawan, it's getting very interesting. First pictures on Republic TV. First pictures. Only channel tracking the story. That's really become a big controversy here. The NIA probing the Antilia bomb scare is searching the luxury car. That's a black Mercedes SUV that was used by Vaze. Shawan, I think to the right of that car is an Innova. We don't know whether the same Innova, that was the same Innova that was seized. Can't say that from this frame, but it's turning out to be a curious case of 3 cars that were used. And the clues seem to be in these 3 cars, Shawan. Seeing with the images right now, Niranjan, this is the same very Mercedes
that was actually parked inside the Mumbai police premises. In fact, Republic TV is in possession of the same very picture of this SUV that was found, luxury SUV that was found inside the Mumbai police headquarters. In fact, there have been certain reports that coming in of junior police officers actually complaining about how this vehicle on the 23rd of December barged inside the Mumbai police compound, and no instructions were given to basically, and so rather there were instructions given not to take details of the vehicle that was basically parked. And this was the same very vehicle that our sources within the Mumbai police have indicated that was actually being used by Sachin Waze. What is not known at this point in time, and which is certainly going to be within the realm of the investigation, as to how exactly an API rank officer was using a Mercedes SUV to begin with. Secondly, what was it doing inside the Mumbai police headquarters? Third, whether this was taken on a rental basis is something that one will have to look into. Look into these details, because right now this very vehicle which is being searched by the National Investigation Agency. In fact, Republic TV has also done its own investigation to find out who this car actually belongs to. And our investigation also indicated that this particular vehicle belongs to a car rental company, and that car rental company, it appears from our sources, that has some sort of a business link or a business interest, which Sachin Waze, which has now basically come under the scanner of the investigative agency. To that for now. Shravan, thank you for joining us with those inputs on a breaking story from Mumbai as it gets bigger and bigger. Controversial API or Assistant Police Inspector Sachin Waze, seen as one of the most powerful police officers in Mumbai until a few days ago when he was arrested, suspended from service, and now in NIA custody. Those are the recoveries made and cars linked to him being searched. All right, so we are going back to the breaking details coming in when it comes to that luxury car that is under the scanner of the agencies. NIA is searching the luxury car that was seized earlier today. The NIA is examining contents from inside the car. We are playing out those pictures for our viewers. 3 cars that are under the scanner of the NIA. This is a luxury SUV, and the connection all coming down to one man, Sachin Waze, who is now being probed by the agencies. The trunk of the car that was used, but who does this car belong to? What is the connection with Sachin Waze? What was this car used for? What were the items inside this luxury SUV? When is it that Sachin Waze had this car? All of these questions that are staring at this point as investigation continues. The only thing we know at this point, because this is the luxury car that was used by Sachin Waze, and I is searching the trunk of the car. Niranjan is back with us. Niranjan, what's happening there? We're staying with the pictures. We're staying with the pictures coming in from the NIA office. This black luxury SUV was brought to the NIA office this evening. It is believed to have been used by Sachin Waze from the information that is available to us officially. It is an SUV that was being used by Sachin Waze according to the police officials. And as of this minute, some local media reports also, of course, suggesting that a lot of recoveries have been made from the trunk. We can't say what these recoveries were, but Shravan is joining us on the phone line. I'm handing it over to him. Shravan, what more are you picking up? Some reports, some media houses, local media houses showing that a lot of recoveries have been made. We don't know what the recoveries are, but certainly some recoveries made or some items seized from the luxury car, Shravan. Well, at this point in time, Niranjan, this is the same very vehicle that was actually being used by Sachin Waze. Now, it appears that the National Investigation Agency had called the owner of this very rental company to appear before them. This was roughly around 1 o'clock this afternoon is what we are given to understand, what the owner of the rental company along with this car had entered the National Investigation Agency's premises. Now it turns out that the NIA is carrying out searches, or rather they're basically inspecting this very vehicle which has been parked inside the NIA compound. Remember, there has been complaints that have basically come in that Sachin Waze, an API rank officer of the Mumbai police, was actually utilizing this very vehicle. And on 23rd of December, that's when this particular car was brought inside the Mumbai police compound. And in fact, sources also indicating that perhaps Sachin Waze had given some sort of instructions that no details of this car should be
taken into records of the Mumbai police. Because remember, every time a vehicle basically enters the Mumbai police compound, you would essentially look at somewhere down the line all records to be taken. But it now turns out that no records of such was basically taken on 23rd of December when this particular vehicle had entered the Mumbai police compound. Now, with this entire connection essentially emerging, what the National Investigation Agency is looking at is that whether at all there have also been some sort of business interest that perhaps Sachin Wazi had, because the question here is that how is it that an API rank officer was actually using a luxury SUV in the first place? And secondly, if at all this was taken on a rental basis, why was it taken to begin with? It turns out that fake number plates are also doing the rounds, because remember, in that Scorpio that was actually found outside Mukesh Ambani's residence, there were a number of fake number plates. And in fact, those number plates that were actually being made in Vikhroli, a connection there too has emerged, where you've had a colleague of Sachin Wazi actually who was responsible for putting out or getting those or procuring the fake number plates. So all that put together, remember that there are a lot of questions now being raised about where these cars were coming out from and exactly what was it being used for. Stay with these pictures. Shawan, stay with me. I want to go across to Alisha as well, joining us live on this broadcast. Alisha, if you can hear me, we're looking at the live pictures coming in from the NIA office. The trunk of the black SUV is being searched. From the visuals, we can make out that there is a search and some items seem to have been recovered. What do we know so far officially? Officially, what do we know so far? Alisha. वो बरामद की है, कितनी कैश है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम देख सकते हैं कि NIA के सारे बड़े अफसर देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं अभी सीधे तस्वीरें उस मर्सिडीज की जो कि अब NIA ऑफिस में लाई गई है, और वहीं पर देखा जा रहा है कि इस मर्सिडीज के अंदर जितनी भी चीजें थी, फिर चाहे वो कपड़े हो या करेंसीज हो, जो पैसे हैं, अब तक इस पर साफ नहीं हुआ है कि कितने पैसे जो है बरामद NIA की ओर से की गई है। लेकिन अब हम सीधे तस्वीरें देख रहे हैं NIA ऑफिस से, जहां पर एक मर्सिडीज गाड़ी जो है, जो कि एक लग्जरी गाड़ी जो है वो लाई गई है। कहीं ना कहीं जो कनेक्शन और साफ तौर पर जो इंट्रोगेशन लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ओर से की जा रही है, और वहीं पर जो लिंक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इस मर्सिडीज कार को NIA ऑफिस को लाया गया था, और लाने के बाद अब पूरी जांच जो है उस कार की जा रही है। हमने देखा कि इस कार से ही NIA ऑफिसर्स के ओर से जो उसकी जो बैक सीट है और साथ ही जो डिक्की है, वहां से पूरे जो सामान है वो निकाले गए थे। जहां तक बताया जा रहा है कि उसमें से PPE किट निकाले गए थे। न कि सिर्फ PPE किट पर साथ ही कपड़े निकाले गए थे, और इतना ही नहीं पर कुछ अमाउंट जो है वो भी रिकवर किए गए NIA की ओर से। अब तक कितने जो अमाउंट है वो रिकवर किया गया, इसका अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, यानी कितना अमाउंट सीज किया गया इस पर अब तक कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। उस ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसका ज़रूर इंतज़ार करना होगा। पर सीधे तस्वीरें हम NIA ऑफिस से देख रहे हैं, जहां पर अब जो मर्सिडीज कार को लाई गई थी NIA के ओर से, और कहीं ना कहीं जो सचिन वाजे के कनेक्शन को देखते हुए जो ये मर्सिडीज कार को लाई है, जिसकी पूरी जाँच अब NIA की ओर से की। देखिए सीधे तस्वीरें जहाँ पर दिख रहे हैं, उसी कार के पास में खुद NIA के ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं, और इम्पोर्टेंटली पहले कार को पूरी तरीके से खंगाला गया, खुद उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको निकाली गई, फिर चाहे वो कपड़े हो या पैसे हो, इन सभी चीज़ों को अब NIA ने अपनी हिरासत में लिया है। और कितने पैसे हैं अब ये देखना होगा, क्योंकि एक सर्टन अमाउंट जो है उस कार से निकाली गई है। देखना ये कि अब किस तरीके से, देखिए हम फिर से देख रहे हैं कि NIA के ऑफिसर्स अब फिर से उस कार की छान कर रही है, पूरी तरीके से उसकी जाँच जो है वो की जा रही है। खुद NIA के ऑफिसर्स जो कि हैंड ग्लव्स पहनते हुए इस पूरे मामले को देख रहे हैं, और खुद उस कार को जिस तरीके से जांच की जा रही है, अब भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इस कार से बरामद की जा सकती है। हालांकि जो बरामदी की गई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि PPE किट है, उसमें कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो कपड़े हैं, साथ ही कुछ पैसे हैं जो बरामद किए गए थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर से जो है कहीं ना कोई जो चीज़ अगर कोई इस कार में छुटी है उसको देख रहे हैं। देखिए सीधे तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक TV पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब NIA के ऑफिसर्स इस गाड़ी को, जो लग्जरी गाड़ी यहाँ पर लाई गई है NIA ऑफिस में, उसको पूरी तरीके से
छानबीन की जा रही है। देखिए सीधे तस्वीरें हम देख रहे हैं कि हर एक चीज़ को ठीक से खंगाला जा रहा है एनआईए ऑफिसर्स के ओर से। हर एक चीज़ को देखा जाएगा कि किस क्या उस पर कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर छुपी हुई है। लाइट्स ऑन करके ऑफ करके सारी चीज़ें देख रहे हैं। देखिए हम देख रहे जो तस्वीरें जहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हर एक चीज़ को खंगाला जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी जो है मौजूदगी इसमें कोई भी चीज़ अगर बरामद की जाती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो एक तस्वीर जहाँ पर हम देख रहे हैं इससे पहले भी जो है सीज की गई है, कुछ कपड़े सीज के गए थे और अब जो है कुछ मनी अकाउंट्स जो है जो कुछ पैसे हैं जो बरामद किए गए थे और अब फिर से एक तरफ का जो जांच है वो अब एनआईए ऑफिशियल्स के ओर से की जा रही है। देखिए सब तस्वीरें देख रहे हैं हम जो कि एनआईए ऑफिशियल्स की ओर से सीधे तस्वीरें उस लग्जरी कार की देख रहे हैं जहां पर अब पूरी तरीके से जांच एक तरफ एनआईए ऑफिसर्स के ओर से एनआईए ऑफिस में की जा रही है और अब एनआईए ऑफिसर्स अब भी उस कार को पूरी तरीके से तलाश रहे। देखिए तलाशी जो है वो अभी भी जारी है कि क्या कार के सीट के नीचे या फिर जो डैशबोर्ड है उसके अंदर कुछ रखा हुआ है। यानी अब तक की सीजर की बात करें जो कि अब तक एनआईए की ओर से एनआईए ऑफिसर्स के ओर से जो अब तक जो बरामदगी की गई है जिसमें बताया गया है कि कुछ कपड़े कुछ पैसे पाए गए। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनआईए ऑफिसर्स अब फिर उस कार को स्टार्ट भी कर चुके हैं एनआईए ऑफिसर्स। यानी अब उसको ठीक से पूरी तरीके से हर एक खुद एनआईए के ऑफिसर्स जो है हैंड ग्लव्स पहनते हुए एक तरफ अब पूरी जांच जो है वो जांच एजेंसीज के ओर से की जा रही है। फिर चाहे वो फ्रंट सीट हो, हम देख रहे हैं कि कुछ ऑफिसर जो कि फ्रंट सीट को पूरी तरीके से खंगाल रहे हैं, वहीं दूसरे ऑफिसर जो है वो बैक सीट पर रहकर भी जो है एक तरफ पूरे कार को खंगाला जा रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं पर एक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर थरो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूर की जाएगी। लेकिन अब जो तस्वीरें सबसे पहले हम रिपब्लिक टीवी पर देख रहे हैं जहाँ पर एनआईए ऑफिसर्स जो कार को लेकर आई थी और कहीं ना कहीं पर एक कंपनी के ओर से जिसके कनेक्शंस और सचिन वाजे के साथ ज़रूर है, जिसको देखते हुए इस गाड़ी को और ये गाड़ी कहीं ना कहीं पर बताई गई है कि सीपी ऑफिस पर ही मौजूद थी और ये बरामदगी जो की गई है जो खुद एक तरफ जो एनआईए ऑफिशियल्स ये गाड़ी लेकर आए वो सीपी ऑफिस से लेकर आए और जिसको देखते हुए अब पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए ऑफिशियल्स के ओर से की जा रही है। देखिए डिक्की तक खोली गई है और कुछ इससे पहले भी कपड़े पाए गए थे। कपड़ों के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि पीपी किट भी पाई गई थी, कुछ पैसे भी बरामद हुए, लेकिन अब तक कितने हुए इसके पर कोई भी कंफर्मेशन जो ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन खुद हमने देखा कि एनआईए ऑफिशियल्स जो कि अब पूरी तरीके से छानबीन जो है वो इस गाड़ी को कर रहे हैं। अब डिक्की का बोनेट खुला जा रहा है। देखिए हर एक चीज़ को बारीकी से देखी जा रही है। एनआईए टीम के ओर से पूरी कार को ठीक से खंगाला जा रहा है, ठीक से देखा जा रहा है, एक एक चीज़ें को बारीकी से देखी जा रही है। उसके बाद ही जांच को लेकर जो है आगे के दिखे जाएंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एनआईए की टीम जो कि हर एक चीज़ को जो गाड़ी अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए इस एनआईए ऑफिस में लाई गई है जिसको अब पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है और उनको एक एक चीज़ उसमें बरामदगी की जाएगी। लेकिन अब एनआईए के करीबन 6 से 7 ऑफिसर्स हम देख रहे हैं जो कि पूरे गाड़ी को खंगाल रहे हैं। देखिए सीधे तस्वीरें जहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां एनआईए के ऑफिसर्स खुद ग्लव्स पहनते हुए गाड़ी को एक एक तरफ से छानबीन किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पर एक सुराग के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। हर एक इस समय हर एक सुराग मिलना इस गाड़ी से, हर एक सुराग, हर एक लिंक जो कि एक कहीं ना कहीं पर जो डॉट्स है। और जैसे हमने बताया कि इससे पहले एनआईए ऑफिशियल्स कोर्ट के सामने भी बोल चुके हैं कि सचिन वाजे से जुड़े जो चेन है उसको पकड़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी चेन को देखते हुए हर एक चीज़ को बारीकी से जो है खुद एनआईए ऑफिशियल्स के ओर से देखी जा रही है। और वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि अब वहाँ पर जो फिर चाहे फिंगरप्रिंट्स क्यों ना हो या फिर चाहे उनके अंदर से मिली हुई चीज़ें जो है वो हर एक देखिए अभी फ़िलहाल जो अब आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस लाइव तस्वीर में कहीं ना कहीं पर ये देख रहे हैं कि एनआईए की टीम अब उसमें फिंगरप्रिंट्स भी देख रही है। यानी हर एक चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बारीकी से देखा जाएगा और उसी को देखते हुए एक लिंक जो है वो ज़रूर जोड़ा जा रहा है और वही लिंक को देखते हुए यहाँ पर एनआईए के ऑफिशियल्स
जैसे ही इस गाड़ी को लाए उसके बाद कहीं ना कहीं पर सवाल ज़रूर जो है सचिन वाजे से पूछे गए होंगे और उसके बाद ही जो है यहाँ पर सीजर जो है वो एक तरफ किया गया है। और उसके बाद जो जानकारी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है जिसमें बताया कि इसी गाड़ी से जो है कपड़े पाए गए थे, पीपी किट पाई गई थी। इतना ही नहीं पर खुद जो है कुछ पैसे कुछ अमाउंट जो है वो पाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं पर एक डाउट ज़रूर एनआईए ऑफिशियल्स को है जिसके लिए खुद यहाँ पर एनआईए ऑफिशियल्स के 7 से 8 ऑफिशियल्स हम देख रहे हैं जो कि गाड़ी को आगे से लेकर पीछे तक के हर एक चीज़ें को, फिर चाहे वो फ्रंट सीट हो या बैक सीट हो या बोनेट हो या डैशबोर्ड हो, उन सभी को खंगाला जा रहा है। यानी इस समय इससे साफ तौर पर पता चलता है कि एनआईए जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कहीं ना कहीं पर एक छोटी सी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी सी छोटी सबूत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए एनआईए की टीम जो है जो इस मौके पर जो एनआईए ऑफिशियल और एनआईए ऑफिस जो कि मुंबई के पडर रोड पे है जहां पर ये पूरी मामले की जांच की जा रही है, खुद यहां पर सचिन वाजे मौजूद है। उनके साथ जो है पिछले इसके 11 घंटे तक की पूछताछ खुद एनआईए के आईजी रैंक ऑफिसर की ओर से की गई थी। लेकिन अब जब से ये गाड़ी यहाँ पर सीजर की गई है, जब से गाड़ी यहाँ पर लाई गई है, उसके बाद अब गाड़ी को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। देखिए तस्वीरें में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि एनआईए ऑफिशियल्स हर एक बारीकी की चीज़ें जो है गाड़ी को खंगालते हुए दिखाई दे रही है। और एक तरफ अब जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनआईए ऑफिशियल्स हर एक समय को, हर एक जगह को, फिर चाहे वो फ्रंट हो या बैक सीट हो, डैशबोर्ड हो, इन सभी को दिखाए क्योंकि हर एक लिंक जो है इस समय काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण होगा। और इम्पॉर्टेंटली सचिन वाजे के इस तरीके के जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक तरफ अगर कोर्ट के सामने जहां पर एनआईए की ओर से जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कई ऐसे मटेरियल्स और एविडेंस है जो कि सचिन वाजे के इन्वॉल्वमेंट बताते हैं, कई ऐसे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स है जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि सचिन वाजे इस एंटिलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके रोल है, उसी रोल को देखते हुए लगातार जांच की जा रही थी। और वही कस्टडी, इसी मांग को लेकर कस्टडी जो है वो खुद सचिन वाजे की 14 दिन की मांगी गई थी। हालांकि कोर्ट की ओर से 11 दिन की कस्टडी दी गई थी और 11 दिन की कस्टडी के बाद लगातार पूछताछ जो है वो खुद एनआईए ऑफिशियल्स की ओर से चल रहे थे। और जैसे कि बताया गया कि एनआईए के आईजी रैंक ऑफिसर जो कि दिल्ली से मुंबई यहाँ पर पहुंचे थे और 11 घंटे की सबसे पहले पूछताछ जो है वो सचिन वाजे के साथ किया गया, उनसे जुड़े हर एक चीज़, फिर चाहे वो अब जो तस्वीरें में हम देख रहे हैं कि जो कार भी दिख रही है उनको भी एक लिंक के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एक तरफ जो पूरा जो कार है उस कार को जो लिंक सचिन वाजे दिखाई है। और इम्पोर्टेंटली ये कार जो सीज की गई है, ये कार जो आज एनआईए ऑफिस के बाहर लाई गई है वो सीपी ऑफिस से लाई गई है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो दी गई है, जो हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि खुद एक तरफ इस कार को सीपी ऑफिस से लाने के बाद पूरी तरीके से जो टीम है यहाँ पर एनआईए की टीम 7 से 8 ऑफिसर हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब यहाँ पर कार को जो लाया गया है उसकी जांच की जा रही है। हमने देखा कि कैसे ऑफिसर हर एक चीज़ को, हर एक छोटी चीज़ को किस तरीके से खंगाल रही है। जो ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो हर एक चीज़ को खंगाल रहे हैं। इससे पहले भी कुछ चीज़ों की बरामदगी की गई है, फिर चाहे वो कपड़े पाए गए थे, साथ ही पीपी किट, जो जानकारी दी गई कि पीपी किट भी पाई गई है। यानी कहीं ना कहीं पर जो सीसीटीवी फुटेज को लेकर एनआईए की टीम जो पूरे मामले की जांच कर रही है, यानी इस पीपी किट को लेकर अगर कोई लिंक है तो इस पर भी जो है पूरी जांच, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो एनआईए टीम की ओर से ली जाएगी। लेकिन कुछ पैसे भी इस गाड़ी के अंदर से बरामदगी की गई है, यानी कुछ अमाउंट, सर्टन अमाउंट्स जो है वो इस गाड़ी से बरामद की गई। यानी उसका भी अब ज़रूर हम इंतज़ार करना होगा, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़रूर दी जाएगी और उसी स्टेटमेंट के ज़रिए पता चलेगा कि क्या क्या बरामदगी इस गाड़ी के अंदर से, जो एसयूवी गाड़ी हम सीधा देख रहे हैं कि एनआईए की टीम जहाँ पर अब रात के 9 बजने जा रहे हैं, पर अभी भी एनआईए टीम के ओर से जो जांच है वो लगातार जारी है। और इम्पोर्टेंटली जो गाड़ी आज दोपहर को यहाँ पर लाई गई थी, ये गाड़ी की लिंक जो है वो सचिन वाजे के कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ही पता चली है। और इसी इन्फॉर्मेशन के तहत जैसे ही पता चला कि ये गाड़ी सीपी ऑफिस में मौजूद है, सीपी ऑफिस से फिर यहाँ पर एनआईए ऑफिस में लाया गया। एनआईए के जो ऑफिशियल्स है इसको लगातार जाँच कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे गाड़ी लाई गई, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है
है वो ज़रूर सचिन वाजा के ओर से बाहर निकली है। और इसी के बाद एनआईए के ऑफिशियल्स यहाँ पर सबसे पहले आए, पूरे गाड़ी को खंगाला गया जिसमें से कपड़े, पीपीई किट, कुछ पैसे बरामद किए गए। बरामद के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है खुद यहाँ पर कुछ पैसे गए, पर अभी भी एनआईए की टीम जो है वो इस गाड़ी की जांच कर रही है। जांच करने के बाद हर एक बारीकी चीज़ को देखी जाएगी। देखिए इतना ही नहीं, पर फिंगरप्रिंट्स तक को देखा जा रहा है, यानी इस समय फिंगरप्रिंट्स का भी मिलना, इस समय एक लेटर, एक पेपर, कागज़ का टुकड़ा भी मिलना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये इसी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर बताता है। क्योंकि इस समय हर एक लिंक को जोड़े, हर एक चेन को जोड़ना, हर एक, फिर चाहे वो जो ऑफिशियल्स हो, जिन ऑफिशियल्स के ओर से जो इंक्वायरी एनआईए की ओर से की जा रही है, उनको एक एक सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने देखा कि खुद क्राइम यूनिट के, क्राइम ब्रांच के सीआईयू के एपीआई खुद रियाज काजी, जिनसे सवाल जो है खुद एनआईए की टीम कर रही थी, 3 दिन से लगातार सवाल कर रही थी। लेकिन अब जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब एनआईए के जो ऑफिशियल्स है वो इस गाड़ी पे मौजूद है, खुद अंदर बैठ के कहीं ना कहीं पर चेकिंग की जाएगी, हर एक चीज़ों को देखा जाएगा। सीधे गाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुद एनआईए ऑफिशियल्स इसके मौजूद है, मौजूदगी उनकी दिखाई दे रही है। और हमने देखा कि किस तरीके से छानबीन जो है की जा रही थी। देखिए एक तरफ हम देखा कि कैसे यहाँ के जो एनआईए ऑफिशियल्स गाड़ी को जैसे ही सबसे पहले यहाँ पर लेकर आए, लेने के बाद इसके पहले ओनर्स और किससे डीलिंग सचिन वाजे ने की होगी, किससे बातचीत की होगी, कौन कंपनी था, तो उनसे भी संपर्क करने को लेकर जो है लगातार एनआईए की ओर से जारी रहेगा। लेकिन अब इस तरफ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही इस गाड़ी को यहाँ पर लाया गया, उसके बाद छानबीन जो है वो खुद एनआईए ऑफिशियल्स की ओर से चल रहे हैं। और खुद 7 से 8 ऑफिशियल्स है, एक ऑफिशियल्स को हम जहाँ पर देख रहे हैं, देखिए सीधे तस्वीरें जहाँ पर हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि एक खुद ऑफिशियल जो है उस गाड़ी के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं पर पूरे चेकिंग करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यानी हर एक चीज़ को बड़े बारीकी से देखा जा रहा है। और इसी बारीकी के बाद कहीं ना कहीं पर ये ज़रूर पता चलेगा, हर एक लिंक को जोड़ना सबसे ज़्यादा एक काफ़ी अहम है। क्योंकि हर एक इस लिंक को जोड़ना और हर एक जो चीज़ें को सामने लाना, हर एक इस केस से लिंक से जुड़े हुए हैं। और इसी लिंक के बाद ही कहीं ना कहीं पर जो इसकी चेन है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आएगी। फिर चाहे इस गाड़ी के जो है रजिस्ट्रेशन नंबर हो, या फिर उसके अंदर के मिले ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर जो भी हो। अभी हम देख रहे हैं कि एनआईए ऑफिशियल्स अभी उस गाड़ी को छानबीन करते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर खुद जो है पहले कपड़ों की बरामदगी की गई थी, कपड़े मिले थे, उसके अंदर से पीपी किट मिले थे, कुछ पैसे मिले थे। उस पैसे के बाद फिर से एनआईए की टीम जो है वो नीचे उतरी थी और फिर से कार की जो छानबीन है वो की जा रही थी। हमने देखा कि फिर चाहे वो डैशबोर्ड हो, या फिर उसका बोनेट हो, या फिर जो है उसकी जो बैक सीट हो, फ्रंट सीट हो, हर एक चीज़ को खुद एनआईए की टीम लगातार छानबीन करते हुए नजर आ रही है। यानी एक तरफ आज इस समय ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल सही होगा कि हर एक चीज़ को, हर एक बारीकी को जो है एनआईए जोड़ते हुए नजर आ रही है। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन एनआईए टीम को मिलती है तो उस मौके पर पहुंचकर उन सारी चीज़ों को लेकर, देखिए इतना ही नहीं, अगर इसके और की बरामद की बात करें, देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एनआईए के ऑफिशियल्स जो है, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी लगातार पूछताछ के लिए और कहीं ना कहीं छानबीन के लिए एनआईए की टीम यहाँ पर हर एक जगह पर पहुंचने के बाद जो है वहाँ पर जो है सीजर की जा रही है। और यहाँ पर हर एक को बुलाया जा रहा है, सबसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है। फिर चाहे वो जहाँ तक जानकारी मिली है कि अब तक करीबन 7 मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स जो है उनसे पूछताछ की गई है। फिर उसमें से खुद जो है क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट के जो ऑफिसर्स है, ऑफिसर लेवल है, उनसे भी पूछी गई है, जिसमें से रियाज काजी, जो कि आज ही उनका एक लेटर सामने आया था। देखिए रियाज काजी जिन्होंने जो लेटर दी गए थे वो एक सोसाइटी की दी गई थी, वो सोसाइटी की थी जहाँ पर इनोवा जो गाड़ी है, जो वाइट इनोवा, जो कि उस स्कॉर्पियो कार के साथ, जो स्कॉर्पियो जो कि एंटीलिया के कुछ ही दूरी पर पाई गई थी, जिसमें जिलेटिन के स्टिक्स और एक अंबानी परिवार को धमकी भरा एक लेटर दिया गया था, वो नोट था। उसी नोट के बाद एक साथ में उसी सीसीटीवी में, जो सबसे पहले सीसीटीवी सामने आया था, उसमें साफ तौर पर पता चल रहा था कि जो है एक तरफ
एक तरफ जो है उसी स्कॉर्पियो के साथ साथ एक इनोवा गाड़ी भी खड़ी थी और इनोवा गाड़ी के छानबीन में ही कहीं ना कहीं पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही थी टीम। और इनोवा गाड़ी को भी इन्होंने सीज किया था और ये इनोवा गाड़ी से ही पता चला कि उसको भी सीपी ऑफिस के कंपाउंड जो कि प्रीमाइसेस है वहीं पर अब जो है उनको लिया गया था। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट विजुअल्स जहां पर हम देख रहे हैं कि इस मर्सिडीज का जो लग्जरी कार है उनको अब एनआईए के प्रीमाइसेस में लाया गया, उसकी छानबीन जो है अभी भी जारी है।